Good evening everyone and welcome to this solo learning journey, class number 7 of relations and functions. In this class, 2 or 3 problems related to domain and then the classification of functions. Okay, yes, the expression should greater than equal to 0. So question number 24. Question number 24. If x intersection dx, I mean d on intersection d2, right? Piecewise defined function. This is the main motto, greater than 0. Personal domain का जो ये सारी चीज आपको याद रहे, fractional part function, that बाकी जो सारे functions है that belongs to irrational polynomial function की fraction a naught plus a1 x1 plus a2. Okay, some of the graphs I'm showing you. First, ये कैसे infinity तक लेके चलते हैं, तो y का जो वैल्यू है वो भी infinity तक. Portion of x axis covered by the curve like so. The portion of y axis, तो इस कर्व के अंदर तो 0 से 1 के बीच में ग्राफिकली भी देखें तो x स्क्वायर का वैल्यू सबसे बड़ा होता है. x स्क्वायर की ग्राफ पहला वाला है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना ये. I'm taking a picture of this one. It's really very interesting. It's your homework. Try your practice here. Okay, now greatest integer function. Okay, two functions given together. First one is modulus and the second one is box x. Okay, कोई भी कर्व मेथड सीख लीजिए, काम में आएगा. और हम बेसिक मैथ्स में बॉक्स ऑफ साइन x का जो वैल्यू हुआ -1 है. सो इन दिस केस a से भी -1 से 0 के बीच में आएगा, a से -1 से करते करते बहुत सारा ऐसे पोर्शन ऑफ द बिलो द x एक्सिस मिलेगा. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, लर्निंग एंड टीचिंग. सो दैट्स व्हाई इट्स मोर इंटरेस्टिंग. ओके, इट्स द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. ओके, good evening everyone and welcome to this solo learning journey with SRG. Okay, yesterday it was homework, I guess. Yes. Okay, this is class number 7 of relations and functions. In this class we will complete first 2 or 3 problems related to domain and then the classification of functions. Okay, then the classification of functions. Okay, so this one in the domain finding 3 or 6 points, there was a point B in which we said that the expression under even square root, like this is a even square root. Okay, in that case the expression should greater than equal to 0. So this is, and also in the case of this x to the power 4 minus, it's also under an even square root, right? So this one also should greater than equal to 0. So from this one you will get x square into x square minus 21 into is equal to greater than equal to 0. Now x square into x minus root 21 and x plus root 21 greater than equal to 0. Okay, yes. And from this one what you will do, square karo both sides. Okay, sorry. Okay, now both sides squaring करेंगे तो x to the power 4 minus 21 x square minus 100 is equal to 0, right? Yes. Oh, ऐसा ही हो रहा है क्या? नहीं, sorry, थोड़ा सा 100 जो है greater than equal to this one. Now इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा पलट करते हैं. Okay, now you need to just square both sides. 100 is greater than equal to x to the power 4 minus 21 x square. Now you need to just 100 को हम उस साइड भेजना चाहते हैं. Okay, so x to the power 4 minus 21 x square minus 100. Yes, did you get it? Yes. So x to the power 4 minus 21 x square minus 100 is less than equal to 0. I guess you got this. Yes. Now from here you will get x square minus 25 and x square plus 4. Okay, yes. Now look at this expression. Look at this one, x square plus 4. It can't be 0, can't be negative, it's always positive. Okay, from the real number. If you put x from any real number, if you put x from any point in the real number side, then you will always get a positive number, right? X square plus 4, like minus 3 square plus 4. So you can just divide, you can just extend it from here, divide this. So x square minus 25, and it will not
get change the sign. Why? Because it's a positive constant. Okay, it's a positive number, that's why it will never change sign. Now from here you will get x belongs to x plus 5 and x minus 5, and you need to learn wavy curve method. Okay, you need to learn wavy curve method. What is the chair? Okay, just wait for a second. Try it by yourself from here. Okay, now you just need to plot these two and take the intersection for the domain purpose. Okay, so for the first one, okay, at first take this one. This is minus 5 and this is 5. Okay, this is minus 5 and this is 5. For this case, x should be belongs under this line. Okay, you will learn from this from the wavy curve method, and x belongs to this from there. Okay, now this one 0 will be like something like here. Okay, yes, minus root 21 it's less than, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा है, so हम यहीं पे ले लें minus 21. Plus 21 is somewhere here, right? Yes, plus 21 is somewhere here. Now from that you will find that the point should be like this, and also 0 is there. Okay, so this is the actual solution, and you just need to take their intersection. Okay, so intersection portion is what? 0 is there, 0 intersection portion में आता है, और ये जो -5 से -5 से -√21 ये आएगा इंटरसेक्शन में, तो यूनियन √21, 5. So this is the answer. Answer was C. I hope. Okay. Now you need to. Okay. This number line you will. Yes, recording us. So this number line you will form from the wavy curve method. It's the easiest way. Okay, to draw. So that's fine. At first, learn wavy curve method. We will start from 5th September for basic maths also. Okay, now question number 24. Question number 24, it's a homework. You need to do it in your home. Find the domain of the following functions. Okay, first function is f of x is equal to under root of x square minus 3x plus 2. Okay, and the second one is 1 by x square minus 3x minus 4. Okay, it's your homework. Your progress. Test your progress here. Okay, what you will do here actually? So this is the first function and this is the second function, fx and gx. For this case, we take fx intersection dx, I mean d1 intersection d2, right? For this case, what you will do? X square minus 3x plus 2 is greater than equal to 0 because it's under even square root, right? And this one also even square root, but in the denominator also. Okay, that's why greater than 0. Okay, equal nahi hoga in that case. Okay, this is your homework. Okay, this is your homework. And the second one is fx is equal to 1 by square root of mod x minus x. Okay, yes, this one. Okay, and the third one, f of x is equal to
अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 16 minus x square. What you will do from here? Sin x is greater than equal to 0, and also you have to pay attention to the personal domain of sin x. Sin x is less than equal to sin x is less than equal to -1 से 1 तक है ना sin x का जो डोमेन है. sin x का डोमेन क्या है? पर्सनल डोमेन क्या है sin x का? -1 से 1 के बीच में होता है ना sin x. Yes. Also you have to take care of this one. Okay. Second one I am telling you here. Okay. This one is how you will you do this, like this one. Okay. 16 minus x square is greater than equal to 0, and you need to take intersection of all of them. Okay. Now for this one, it's a little tricky question actually. So here also mod of x minus x should greater than 0, like this one, right? 1 by, याद करो, 1 by gx लिखे थे, right? root over gx. In this case we write down that gx is greater than equal to 0, right? Yes. So this one, keep this in mind. Okay. So yes, इसको थोड़ा अभी वैल्यू निकालो x. अब देखो x का वैल्यू अगर 0 पुट करें, क्या वो सेटिस्फाई करेगा? अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 is greater than 0, but it's not satisfied, right? Now x का वैल्यू अगर 5 पुट करें, तो mod 5 is 5 is greater than 5, तो 5 is greater than 5. क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. बट लेफ्ट में आए, अगर हम लेफ्ट में आए थोड़ा बहुत, -5, mod of -5 is greater than -5, तो ऐसा हो सकता है? यस. mod of -5 is 5, -5 से 5 -5 से बड़ा है. ऐसे करके किसी भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, वो हमेशा ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा. ओके. दैट्स व्हाई हियर रेंज ऑफ the domain of, in this case, the domain here is x belongs to -infinity से 0. ओके. 0 नहीं है, बस नेगेटिव वाला पॉइंट तक ही है. ओके. this one little bit tricky actually. I hope you got this. Up to this point you got it. Now we will start the classification of function. Okay. The classification of function. There are two types of function. First, algebraic function and transcendental function. Okay. Two types of function: transcendental function or algebraic function. ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उसके बाद trigonometric function, inverse trigonometric function, these things will come. Okay. And in the algebraic function, like polynomial function, polynomial के भी अंदर भी कुछ फंक्शन है, like constant function, and then linear function, identity function, and after that another yes, polynomial के अंदर बहुत सारा डिवीजन है. क्वाड्रेटिक, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस हैं. उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. दिस इज द मेन मोटो ऑफ फंक्शन. ओके. दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस क्लास एक्चुअली. इन दिस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले greatest integer function. Okay. Then fractional part function, signum function. Okay. Like this least integer function, etc. Modulus function. Modulus function right now we will not cover it. We will cover it in the basic maths class. Okay. So yes. So classification थोड़ा समझ लेते हैं. सबसे पहले तो function लिखो. इसका 2 ब्रांच ऐसे करके रखो.
algebraic and then transcendental ओके। ट्रांसीडेंटल के अंदर हमें बहुत सारे, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, हाँ इतना ही लिखा, but this log of x, right, and ये जो है is greater than 0, a is not equal to 1, x is greater than 0। पर्सनल डोमेन का जो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक fx is equal to a to the power x, where a is greater than 0 and a is not equal to 1, okay, this is exponential function। and इसमें और भी आएगा ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉन्स्टेंट, उसके बाद ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एटसेट्रा, ये सारे आएगा ट्रांसीडेंटल फंक्शन के अंदर, ओके। दिस कम्स इन द ट्रांसीडेंटल। नाउ अलजेब्राइक फंक्शन, इसके अंदर सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल, इसके अंदर आपको आएगा कांस्टेंट एंड देन linear and then quadratic, ओके। सो पॉलिनोमियल के अंदर ऐसे पढ़ेंगे, ओके। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज अलजेब्राइक के अंदर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन को कैसे, हाँ यही सही है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, PIECE, पीस वाइज डिफाइंड, ओके। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, इसके अंदर एक आएगा मॉड्यूलस फंक्शन, fx इज इक्वल टू mod x, देन आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ओके। इसके बाद आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज fx इज इक्वल टू बॉक्स x। उसके बाद आता है तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दैट इज सेकेंड ब्रैकेट के अंदर x, ऐसे आता है। उसके बाद आता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट इसका उल्टा है, मतलब थोड़ा सा ऑपोजिट है ये। fx इज इक्वल टू, ऐसे दो l के बीच में हम लोग x को रखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ओके। लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे करके, हाँ एक और आता है सिग्नम फंक्शन, fx इज इक्वल टू SGNX, सिग्नम फंक्शन, ऐसे करके ये वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग यही पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक और आता है, ये भी अलजेब्राइक के अंदर ही पढ़ता है, एक रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ओके। रैशनल फंक्शन क्या है, px, जैसे रैशनल हम लोगों ने वो पढ़े थे ना, रैशनल नंबर p by q, where p, q belongs to z and q is not equal to 0, in that case also like this, p of x, q of x should be polynomial, okay, polynomial लिखा है, and qx should not equal to 0, this is rational function। और रैशनल फंक्शन को छोड़ के बाकी जो है वो सब इरेशनल फंक्शन है, irrational function, okay, like root of x square minus 1, this is irrational function, okay, this kind of thing। rational function को छोड़ के बाकी जो सारे functions है that belongs to irrational function। I hope everything is done up to this, what I need to write here, yes it's done। constant function क्या है, constant function यही है कि like fx is equal to c, y equal to c, मतलब
इफ x इज इक्वल टू सी, x की कोई सा भी वैल्यू पुट करो, फंक्शन हमेशा सेम कांस्टेंट वैल्यू पुट करेगा। ओके, सो नाउ वी आर अबाउट टू लर्न, वी आर अबाउट टू कंप्लीट polynomial function. Okay, okay, now let's go to polynomial function first. Okay, polynomial function, polynomial के फंक्शन के केस में इसका सबसे पहले एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन के स्ट्रक्चर? a नॉट x to the power 0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x cube plus dot 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 an x to the power n. n is equal to degree. Okay, n is equal to degree and n belongs to natural number. n belongs to natural number like 1 2 3 4 5 like this. Okay, jab like this is actually what x to the power 0, that means it's 1 n1 plus a1 x1 a2 x square plus a3 x cube. This like when n is equal to 10, so the structure will be n1 plus a1 x1 plus a2 x square, this kind of thing up to a10 plus x to the power 10. Okay, so when from here to बाकी ये जो सारे चीज ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये सारे जीरो आ जाते हैं, तब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? एक्स स्क्वायर अप टू, राइट? देन द डिग्री ऑफ द दिस एक्सप्रेशन इज 2, तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। जब यही तक जीरो आता है, a2 भी जीरो है, तब केवल यही बचा रहा। ये क्या है? दिस इज अ लीनियर फंक्शन। ओके, एक्स का पावर जो है वो मैक्सिमम 1 है, तो लीनियर फंक्शन है। जब a1 पे जीरो आ जाता है, तब क्या बचता है? केवल एक कांस्टेंट बचता है, वो है कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो दिस कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक, उसके बाद बाकी जितना भी पावर बनेगा, डिग्री वाला इक्वेशन बनेगा और एक्सप्रेशन बनेगा, वो सारे इसी ही एक कॉमन जनरल स्ट्रक्चर है, इसी में से उन सारी चीज का डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखो, x का कोई सा भी वैल्यू है इसमें पुट कर सकते हो, रियल नंबर से 5 10, क्योंकि ना ये डिनोमिनेटर में है ना ऐसा कुछ है, सो इसे इसमें किसी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो डोमेन ऑफ दिस डोमेन जो है ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल नंबर। ओके, रियल नंबर के सेट में से कोई भी पॉइंट और कोई भी एलिमेंट इस पॉलिनोमियल फंक्शन में रख सकते हो। ओके, रिकॉर्डिंग, हाँ, रियल नंबर के सेट में से कोई सा भी पॉइंट इस पॉलिनोमियल के फंक्शन में रख सकते हो। ओके, नाउ रेंज ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन, रेंज क्या है? जब पॉलिनोमियल फंक्शन ऑड डिग्री का है, ऑड डिग्री का मतलब मैक्सिमम जो डिग्री है एक्स की, मैक्सिमम जो एक्स की पावर है वो ऑड है, मतलब या तो 1 है या 3 है 5 है 7 है एक्सेट्रा, ऐसे करके। ऑड डिग्री के केस में जो रेंज है वो पूरा फुल रियल नंबर के सेट होता है। बट इवन डिग्री के केस में, इवन डिग्री के केस में इज अ सबसेट ऑफ आर। ओके, इज अ सबसेट ऑफ आर होता है। You need to understand this. How? I will show you. Okay, some of the graphs I am showing you. First, ये कैसे subset of R होता है, ये I am showing you. Okay, first one is y is equal to x square. y is equal to x square का ग्राफ, y is equal to x to the power 4 का ग्राफ, and y is equal to x cube इसका ग्राफ। Okay, let me show you. This is y equal to x square के ग्राफ, right? y equal to x square,
and this is y equal to x to the power 4. दोनों का ग्राफ ऐसे ही होता है. ओके, ना y equal to x क्यूब का ग्राफ क्या है? ऐसा होता है ना, y equal to x क्यूब का ग्राफ. यस. अब एक चीज नोटिस करो हियर, यही पे जो वैल्यूज हैं y की जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो अगर हम इन्फिनिटी तक लेके चलते हैं तो y का जो वैल्यू है वो भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी. दैट्स व्हाई फॉर द केस ऑफ इवन डिग्री जो रेंज है वो पूरा का पूरा. अब देखो x का कोई सा भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं ना, और हमने क्या पढ़े थे, द पोर्शन ऑफ x एक्सिस कवर्ड बाय द कर्व लाइक दिस. ये सारी चीजें कवर्ड हो रही है इसमें, इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड ऑल्सो द पोर्शन ऑफ y एक्सिस. तो इस कर्व के अंदर ये सारी चीज भी तो आ रहे हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर प्लस इन्फिनिटी है, तो रेंज भी जो है वो r होता है फॉर द केस ऑफ odd. ओके, द केस ऑफ odd डिग्री पॉलिनोमियल के केस में. बट हियर लुक एट दिस वन, हियर इट्स y equal to x square even degree. Its range starts from this 0, right? Yes, and it never comes to low below the x-axis. Okay, that's why it's 0 to infinity की तरफ जा रहे हैं, right? Here this is the portion of y-axis covered by this curve, right? And it's from 0 to infinity, right? So 0 to infinity, 0 comma infinity, it's a proper subset of R. Okay, from this case also 0 to infinity. You will sometimes find this type of curve. Okay, so this point, from this point it starts, which is also a subset of R, because this portion will never come, okay, under the curve. So that's why the portion of y-axis is also is just a subset of the whole real number set, because this the below portion, it will never come, right, come under this curve. That's why I hope it's clear. Now I am showing you a better picture of this range. Okay, I'm showing you a better picture and it's really very interesting. Or even a hint of odd degree polynomial case. Okay, now I am showing you a better picture actually. Graph का मजा. Okay, polynomial, function of polynomial in the case of even and odd. Okay, how the graph actually looks like. Okay, so this one first, this is y is equal to x square. Okay, this is y is equal to x square. Okay, this is the case of even polynomial. Okay, y is equal to x to the power n, where n is equal to even number. Okay, in this case the graph, and this is y is equal to x to the power n, and n जो है odd number. Okay, n जो है odd here. Okay, so this is y equal to x square, first one. The second one will be like this, y equal to this one. Yes, look like resemblance. Okay, so this is y is equal to, this is x to the power 4 का ग्राफ, y is equal to. Okay, now जब डिग्री बढ़ेगा ऐसे करके, तो ये जो y थे ये थोड़ा सा बढ़ता है और ऊपर थोड़ा सा घटता है. Okay, and this point is, this is the junction point. Okay, this point is -1, 1 and this point is
1, 1, this is 1, 0 and this is minus 1, 0. Okay, yes, and y is equal to x to the power 6 होगा. In that point, in that case, the graph will be like this. Okay, yes, in that case graph will be like this. This is y is equal to x to the power 6, and you will find actually it's not the straight line. Okay, so this is how it looks like. Okay, now look at this one. Look at this one. This is 1, 0. So up to when जब x जो है वो 0 से 1 तक बिलोंग करता है. ओके, 0 से 1 के बीच में रहता है. तो 0 से 1 के बीच में रहता है जब x, तब देखो कोई से भी एक पॉइंट उठा लो, लाइक दिस पॉइंट. जब 0 से 1 के बीच में मतलब क्या है, ये तो 0, 0 और 1, 0 ही है, तो 0 के 1 के बीच में कोई से भी एक पॉइंट उठा लो. मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो ये हाफ है इन दिस केस. तो हाफ के केस में क्या हो रहा है, y का बहुत सारा वैल्यू मिलेगा f of x, लाइक फ्रॉम y इक्वल टू हाफ स्क्वायर, y इक्वल टू हाफ टू द पावर 4, y इक्वल टू हाफ टू द पावर 6. तो 0 से 1 के बीच में अब ग्राफिकली भी देखें तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या देता है, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो इन दिस केस एक्स स्क्वायर के वैल्यू सबसे बड़ा होता है. एक्स स्क्वायर की ग्राफ पहला वाला है ना, सबसे बड़ा है. उसके बाद x टू द पावर 4 का, एंड देन x टू द पावर 6 का. ओके, एंड इसके बाद जब x का वैल्यू 1 से इंफिनिटी की तरफ चलता है, तब जो है बड़ा वैल्यू मतलब डिग्री जिसका बड़ा है उसका रेंज बड़ा होता है. ओके, क्लियर. सो 0 से 1 के बीच में रेंज जो है वो कम डिग्री वाला इवन स्क्वायर रूट का रेंज जो है वो बड़ा होता है. ओके, दिस इज जस्ट मैंने इसको प्रैक्टिस किया थोड़ा दोपहर में, तो मैंने सोचा चलो इसको दिखा देते हैं. अब इन द केस ऑफ ऑड, ओके, ऑड के केस में कैसे है, लाइक दिस वन, like this one, this. Okay, so this is y equal to x cube का ग्राफ. Okay, this is y is equal to x cube का ग्राफ. Okay, now y is equal to x to the power 5 का ग्राफ क्या होगा, ठीक उसके तरह ही है. एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे सब मैच करेगा, 1, 1 आएगा इधर भी और यहीं पर भी माइनस 1, 1 आएगा. उसके बाद देखो जब 5 होगा तो थोड़ा सा ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर ऐसा करके चलेगा. ओके, दिस इज y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 कर्व. ओके, नाउ y इज इक्वल टू x टू द पावर 7 कर्व. इससे थोड़ा सा yes, y is equal to x to the power 7. It doesn't look it very beautiful? Yes, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना ये. I'm taking a picture of this one. Okay, yes, it really looks very nice. It's really very interesting. I tried at आफ्टरनून एंड सो यही पे भी आप नोटिस कर सकते हैं सारे जो ऑड नंबर का कर्व है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. ओके, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं. बट ऑड इवन नंबर के केस में वो एक सर्टेन वैल्यू से हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाई हियर रेंज जो है हमेशा सबसेट होता है रियल नंबर के सेट के. और यहीं पे जो रेंज है
दिस इज इक्वल टू द होल रियल नंबर के सेट का इक्वल होता है. ओके, आई होप दिस you understand, get it? Yes. So now we will move to another question. Okay, now properties of this polynomial function. Okay, properties of this polynomial function. It's continuous. Okay, first जो है continuous है, graph जो है continuous है. Like while drawing the curve or graph, you don't need to take off your pen like this. You just go like this. But in the case of a step function or signal function or any other fractional part function, you need to, like for step function or box x, you will do this. Okay, you will do this. So you need to take off your phone from the paper or from the board. Okay, that's why ये सारे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होते, उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है. बट फॉर दिस पॉलिनोमियल फंक्शन दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस बिकॉज व्हाइल ड्राइंग द कर्व यू डजंट नीड टू टेक आउट योर फोन, not phone, your pen. Okay, that's why it's a continuous. And the second point is which is range things. Okay, yes, this one. And the most important, एक इसको नोट पॉइंट की तरह लिखो. Okay, नोट पॉइंट की तरह. A polynomial function f(x) अगर polynomial function है and satisfy the equation like this, f(x) into f of 1 by x is equal to f(x) plus f of 1 by x. अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है देन ऐसे केसेस में देन f(x) should be equal to 1 plus minus x to the power n. Okay, then f(x) should be equal to 1 plus minus x to the power n. क्लियर? प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके साथ जो और कंडीशन दिया रहेगा यू विल गेट फ्रॉम देयर. एंड इनका जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर ही होता है. ओके, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट वेरीज. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन. ओके, यही पे नहीं, चलो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं. Okay, question number 25. If f(x) is a polynomial function and satisfying f(x) dot f of 1 by x is equal to f(x) plus f of 1 by x and if 3 is equal to minus 80, then find the value of f of minus 2. Okay, so f(x) एक polynomial function है जो इसको satisfy करता है. So in this case, what we know is that f(x) should be equal to 1 plus minus x to the power n, right? So f(x) should be like this kind of function. Now you need to find this function. First f of x find करना है, then x is a minus 2 put करना है, and then find the value of f of minus 2. Right? It's given like f of 3, right? f of 3 is equal to minus 80. Right? f of 3 is equal to minus 80. So f of minus 3 is equal to 1 plus minus, sorry, not minus 3 plus 3 to the power n. Okay, yes, and it's a how much? 80 minus 80, right? Now n का वैल्यू आपको फाइंड करना है. ओके, नाउ n का वैल्यू आपको फाइंड करना है. तो अगर n का वैल्यू अगर 1 पुट करें तो क्या होगा? 1 plus minus 3, which is very far away from minus 80. 1 plus minus, अगर इनका वैल्यू 2 पुट करें 9, also not 3 पुट करें 27, और 27 मतलब 3 to the power 3 is equal to 27, right? बट इनका वैल्यू अगर हम 4 पुट करें, like n is equal to, अगर इनका वैल्यू अगर हम 3 पुट करें, then what you will find? 1 plus minus 3 to the power 3 is equal to 1 plus minus 27. क्या ये 80 के आसपास है? 80 के आसपास नहीं है. तो हम थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा के देखते हैं. n is equal to 4 पुट करते हैं. 1 plus minus
3 to the power 4 is equal to 1 plus minus 81. 3 to the power 4 is 81. So it's around minus 80, right? अब वैल्यू माइनस, अब देखना है -1 लेना है कि +1 लेना है. अगर हम लोग यहीं पे माइनस वैल्यू लेते हैं देन व्हाट वी गेट 1 minus 81 is equal to -80. इट मैच्ड. बट अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं सबसे पहले क्या शो करेगा 1 minus 1 plus 81 is equal to 82. तो मैच कौन सा वाला कर रहे हैं 82 वाला, सॉरी माइनस वाला पॉइंट मैच कर रहे हैं, माइनस वाला वैल्यू जो है मैच कर रहे हैं. इन व्हाट n is equal to 4. So fx will be 1 minus x to the power 4. Okay, fx will be 1 minus x to the power 4. So now you need to find f of -2. f of -2 पुट करेंगे 1 minus -2 to the power 4 is equal to 1 minus 2 to the power 4 is 16 minus 15. This is answer, right? Yeah, question number 25. Yes, this the one question which is homework for you. होमवर्क इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है. ओके, क्वेश्चन नंबर 26, right? Yes, question number 26. A given function is a polynomial function of fx. fx क्या है? एक polynomial function है, एक pf है, polynomial function है of x and expression को satisfy कर रहा है fx dot fx f of y is equal to f of x plus f of y plus f of xy, okay, -2, and x and y belongs to real number, okay, and f of 2 is 5. Then find f of 3. Then f of 3 फाइंड करने है आपको. वैल्यू दिया है a का वैल्यू पहला ये 10, b है 24, c 15 and d है -8. Okay, so it's your homework. Try your progress here. Okay, it's not actually the standard expression which we have note down, right? But you can make it. Okay, y की जगह 1/x put करो. This is true for all the values of x and y from the real number. Okay, y is a real number except 0. So y is a real number but except 0. So 1/y is also a real number. So put that in the equation. 1/y. So f of x into f of 1/x is equal to f of x plus f of 1/x plus f of 1 आएगा, right? f of 1 आएगा. तो आपको अगर रिड्यूस करना है ओरिजिनल ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो सबसे पहले आपको f of 1 की वैल्यू चाहिए. कैसे भी करके f of 1 की वैल्यू फाइंड करो. इसी में से x एंड y की वैल्यू 1 पुट करना, देन f of 1 into f of 1 इक्वल टू f of 1 सारी चीज f of 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. वही में से एक f of 1 की 2 वैल्यू आएगा, उसमें से एक वैल्यू जो है वो आपको हटा देना है और एक वैल्यू लेना है, सो दैट प्रोसीजर आगे चल पाए. ओके, ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है खुद से. नहीं हुआ तो अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे. ओके, बट यस आंसर आएगा 10. ओके, आंसर आएगा 10. नाउ एक और प्रॉब्लम है, greatest integer, sorry, not problem. So this is actually polynomial function. Now we are about to discuss polynomial function. नहीं sorry, greatest integer function. mod function जो है हम इसके बाद करेंगे, admin basic क्लास में करेंगे, but after this we will start greatest integer function. Okay, now greatest integer function. Okay, yes. Greatest integer function, that is box x.
Okay. Yes. Y equal to fx. Y equal to fx is equal to box x. Box x is GIF, greatest integer function, where box x ये क्या डिनोट करता है? डिनोट where box x denote the value of x denote the greatest integer function, sorry, the greatest integer, greatest integer. ओके, मतलब इसमें किसी भी एलिमेंट आप इनपुट करो और हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ही शो करेगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x. ओके, व्हाट डज इट मीन? अगर मान लो ये जो बॉक्स x है, बॉक्स x की जगह हम लोग बॉक्स 5 पुट करें तो क्या बोला? ये हमेशा क्या आउटपुट देगा? तो सबसे बड़ा इंटीजर देगा लेस देन और इक्वल टू x. अगर x जो है वो खुद इंटीजर है, लाइक हियर x इज व्हाट? हियर x इज 5, राइट? यस, सो दैट्स व्हाई इट विल गिव यू 5 इंटीजर. बट अगर x जो है वो 5.3 होता, क्या ये इंटीजर है? इंटीजर नहीं है. तो लेस देन, इससे सबसे पहले वाला इंटीजर शो करेगा. इससे सबसे पहले वाला इंटीजर क्या है? 5 है, और इसके बाद वाला 6 है. तो पहले वाला इंटीजर ऐसा करके मिलेगा. लेस देन x 5.3 से कम है ना 5. यस, दैट्स व्हाई. अगर 5.9 पुट किया रहता है यहाँ का तब भी 5 रहेगा, क्योंकि 5.9 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है? 5 है. ओके, 5.9 से पहले वाला इंटीजर क्या है? 5 है. ओके, विच इज लेस देन 5.9. ओके, 5.9 से छोटा है ये. ओके, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. लाइक अगर तुम ऐसे पुट करो 11.1, व्हाट विल गेट? 11. बट अगर 10.9 पुट करो देन व्हाट यू विल गेट? सेम. इससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर ये पुट करोगे. ओके, अब माइनस वाला केस में देखिए, राइट? ये हमारा नंबर लाइन है, राइट? 0 है, या फिर -2 मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं, 1 2 3. ओके, सो अगर कोई पॉइंट ए पे है, x वैल्यू जो है ए पे है, तो अगर इसमें x मतलब बॉक्स x के अंदर ये वाला वैल्यू पुट करें तो कौन सा वाला इंटीजर देगा? जस्ट पहले वाला इंटीजर. ओके, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, ये वाला इंटीजर आपको देगा. सो अगर कोई पॉइंट ए पे लाई कर रहा है, x का जो वैल्यू है वो 0 और 1 -1 के बीच में है, तब भी कौन सा वाला वैल्यू देगा? राइट में नहीं, तब भी लेफ्ट में जाकर यही वाला वैल्यू देगा. ओके, तब भी लेफ्ट में जाकर इससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर है -1, यही वाला वैल्यू देगा. ओके, और ए के बीच में होगा तब भी जस्ट पहले वाला इंटीजर वैल्यू देगा. तो अगर बॉक्स x के अंदर -0.9 रहता तब क्या होता? तब इसका आउटपुट क्या होता? -0.9 एक्चुअली है कहाँ? 0 है और -1 है, तो -0.9 विल लाइक हियर. तो इन दिस केस इफ यू राइट 0 इट्स रॉन्ग, बिकॉज 0 राइट में 0 इससे बड़ा वाला एलिमेंट है, राइट? तो हमें क्या होगा? -1 होगा इन दिस केस. ओके, इन दिस केस आंसर विल बी -1. अगर ऐसा कुछ होता तो -1.7. If you write -1, it's wrong because -1.7 is like here, right? Like here, and यही से आपको लेफ्ट की तरफ जाना है. उससे पहले वाला इंटीजर क्या है? -2. -1 जो है उसके बाद वाला इंटीजर है. ओके, आई होप इट्स क्लियर. सो टेल अबाउट दिस. -517.9 इज इक्वल टू हाउ मच? बॉक्स के अंदर -517.9 दिया हुआ है. ओके,
सो सबसे पहले अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो नंबर लाइन पुट करो। ये मान लो 0 है, ये मान लो -517.9 है, और -516 होगा इस साइड में, 17.9 इस साइड में, तो -517 यहीं पे होगा। नहीं, -518 सबसे पहले आएगा ना, नहीं -518 यहीं पे आएगा, -518 यहीं पे आएगा, 16 इस साइड में आएगा, 18 इस साइड में आएगा, राइट। तो इससे जस्ट पहले वाला एलिमेंट कौन सा है, इंटीजर कौन सा है, -518। ओके, so sometimes you need to remember these things. Okay, yes. So box x क्या है, box x ऐसा फंक्शन है, तुम इसके अंदर इनपुट के तौर पे कुछ भी प्रोवाइड करो, आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। ओके, इसके अंदर कुछ भी पुट करो, कुछ भी फ्रॉम रियल नंबर के से कुछ भी पुट करो, हमेशा आउटपुट के तौर पे इंटीजर आएगा, हमेशा आउटपुट के तौर पे इंटीजर आएगा। ओके, इनपुट कुछ भी पुट करो, आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा। नाउ सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर। अब क्वेश्चन नंबर 26, राइट, या 27 सॉल्व द फॉलोइंग। Okay, solve the following. First one, box of x is equal to -4. x का वो वैल्यू बताओ जिसके कारण जो बॉक्स ऑफ x है वो -4 आता है। दूसरा वाला, बॉक्स x is equal to √5. x का वो सारे वैल्यू बताओ जिसके कारण बॉक्स का x का जो वैल्यू है वो √5 आता है। तीसरा, 3 box x plus 20 by box x minus 5 is equal to 1. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद x का जो वैल्यू है वो निकालो। ओके, नाउ फोर्थ वन इज box of mod x is equal to 7. ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ओके, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नाउ box x is equal to -4 अगर समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, अब -4 का मान लो यहीं पे 0 है, तो 1 2 3 4 -4 यहीं पे होगा। छोड़ो इसको, मान लेते हैं कि यहीं पे -4। ओके, ये वाला पॉइंट -2 है, उससे पहले वाला -4 है। ओके, यस, और ये -5 है और ये -3 है। ओके, दिस इज -3, दिस इज -4, दिस इज -5। x का जो वैल्यू है -4 है। -4 x का वैल्यू कब कब हो सकता है, जब जो पॉइंट है इसके बीच में होगा ना, 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट लाई करेगा, ये वाला पॉइंट इसमें हॉलो सर्कल होगा। क्योंकि अगर -3 होता, बॉक्स के अंदर -3 है, तो ये तो -3 देगा ना, राइट। लेकिन अगर बॉक्स के अंदर -3.2 आएगा तो ये क्या देगा, -4 वाला आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि -3.2 विल बी लाइक ए -3.2। तो इससे पहले वाला इंटीजर क्या है, -4, इसके बाद वाला इंटीजर है -3। -3 उसके पहले नहीं है, उसके छोटा इंटीजर नहीं है, उससे बड़ा इंटीजर है -3.2 के। ओके, यस, दैट्स व्हाई ये वाला हॉलो सर्कल से 4 तक चलेगा और 4 क्लोज्ड आएगा। क्यों? क्योंकि -4 तक की वैल्यू है जो -4 दे सकता है। ओके, सो इन दिस केस what x implies, x implies -4 से 3 तक, -4 क्लोज्ड, इसमें से किसी भी वैल्यू पुट करो इसके अंदर। -4 पुट करेंगे तो -4 ही आएंगे, लेकिन 3 पुट करेंगे, सॉरी नॉट 3, इट्स
-3। ओके, -3 इसके अंदर एक्सक्लूडेड है, केवल वही पॉइंट है। ये वाला तो आप लोगों ने शायद किया ही होगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये सब बेसिक मैथ्स के अंदर होता है, ये सारी चीज़ उसमें भी चलेगा। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ आता है। ओके, तो या x का जो वैल्यू है वो -4 से -3 के बीच में आएगा। ओके, जब भी कंफ्यूजन आए तो ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है और देखना है कि वैल्यू कहाँ आ रहा है। ओके, सो दिस इज नाउ बॉक्स x के लिए हम लोग क्या पढ़े, बॉक्स x के अंदर कुछ भी डालो, राइट साइड में आउटपुट में जो आएगा वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए। क्या √5 इंटीजर है? इट्स नॉट एन इंटीजर। ओके, सो यहीं पे x का जो वैल्यू है 5 होगा, मतलब x का कोई वैल्यू मिलेगा ही नहीं जिसको आप बॉक्स के अंदर डालो तो √5 आएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई यू विल नेवर गेट एनी वैल्यू। यही से भी वैसे ही कुछ मिलेगा आपको, 3 बॉक्स x माइनस बॉक्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, गलत कर रहा हूँ क्या मैं? 3 बॉक्स x इस साइड में लेके आओ, यस, तो 2x आएगा, यस सही आ रहा है। बॉक्स x इज इक्वल टू इस साइड में -5 एंड 20, फिर इस साइड में आएगा -25। ओके, सो बॉक्स x is equal to -25/2. Again, it's not an integer. Okay, again it's not an integer, so you will never find any value of x. So x is 5 मतलब x का कोई वैल्यू है ही नहीं। Okay, now this one is interesting. Okay, you need to find the values of x, right? So here are two functions given together. First one is modulus and the second one is बॉक्स x। ओके, सबसे पहले इसका हम अल्फा पुट करने से देखने का आसानी से, तो अल्फा पुट करेंगे तो 7 आएगा, राइट। अब देखो अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं ताकि वो 7 मिले, राइट। अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, नंबर लाइन में देखो पुट करके, ये है 7, ये है 8, ये है 6, राइट। यही से 8 तक का हॉलो सर्कल कोई से भी पॉइंट चूज करो, 7 पॉइंट मान लेते हैं 5। ओके, 7.5 अगर बॉक्स 7.5 इज 7, 7.9 इज ऑल्सो 7, बट बॉक्स 8 क्या 7 है? नहीं है, 8 है। तो केवल 8 वाला पॉइंट को छोड़कर 7 से 7.9 तक का सारे वैल्यूज जो हैं वो अल्फा के अंदर आएगा। तो अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? अल्फा का वैल्यू 7 से होकर 8 तक है, राइट, यस। अब अल्फा का क्या मतलब है? अल्फा का मतलब है मॉड x। ओके, तो अब 2 केस बनेगा इसे, 7 is less than equal to mod x and also mod x is less than 8। यही में से आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगा वही भी कर्व मेथड और जो भी है उन सारी चीजों से, ओके, इन सारी चीजों से जो वैल्यू मिलेगा वो है, एक है -8, -7, 7, 8। ओके, तो -8 से इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हमेशा ऐसा करके मिलेगा, ये हॉलो सर्कल होगा और ऐसा करके। ओके, ये मतलब x का जो वैल्यू है यही से क्या होगा आपका -8, 7 यूनियन 7, 8। ओके, ऐसे करके होगा। कोई भी कर्व मेथड सीख लीजिए, काम में आएगा। और हम बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब करवाएंगे। ओके, ये सब हमने डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। यस, दिस वाज एंड नाउ इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब एक और इंटरेस्टिंग जिस पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 27 में, कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो 1 है। ओके, साइन एक्स का जो वैल्यू है वो 1 है।
मतलब बॉक्स ऑफ साइन एक्स का जो वैल्यू वो 1 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो साइन एक्स है ये वैल्यू कहाँ तक चल सकता है? ऐसे 0, ऐसे 1, ऐसे 2। 1 है, इसका मतलब यही से स्टार्ट करके 2 तक हॉलो सर्कल यही तक चलेगा ना एक्स का वैल्यू, तभी ना। मतलब ये अगर पूरा इसको अगर हम लोग अल्फा मान लेते, फिर से इसको हम बीटा मान लेते मान लो, तो बीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो मतलब बॉक्स ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब बीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेफर करेगा? बीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं 1, तब बॉक्स ऑफ बीटा 1 देगा। बीटा इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ बीटा का वैल्यू मान लेते हैं 1.3 है, तो बॉक्स ऑफ 1.3 इज इक्वल टू 1 है। यही से 2 तक चलेगा, ओपन ब्रैकेट 2 तक, राइट। तो बीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ तक? 1 से 2 तक चलेगा, राइट। यस। अब हमारा एक्सपेक्टेड साइन एक्स बैठा, साइन एक्स बैठा है। अब साइन एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, बट साइन एक्स का जो पर्सनल रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? पर्सनल रेंज का हमेशा, पर्सनल डोमेन का हमेशा ध्यान रखना है, ओके। साइन एक्स का रेंज जो है वो -1 से 1 तक है, तो यही से केवल एक ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है, वो है साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ओनली पॉसिबिलिटी, ओनली possibility because of personal domain of sin x, sorry personal domain है, personal range, personal range sin x का personal range क्या है? 1 है, मतलब -1 से 1 के बीच में है। अब x का वैल्यू क्या होता है? 2n + 1 π/2, 2n है या फिर 4n है? 4n + 1 × π/2 ये होता है। तो x यही से क्या मिलेगा? 4n + 1 π/2। सोल्यूशन यही है, ओके। आई होप अप टू दिस इज क्लियर टू यू, ओके। वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू कन्वे टू यू इज sin x, बॉक्स ऑफ sin x इज इक्वल टू -1 जब हो, ओके। इसके बाद वो वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है और भी। बिफोर दैट टाइम कितना हुआ? 1 घंटा हो चुका है, ओके। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज साइन एक्स का जो वैल्यू है ये इम्पोर्टेंट, स्टार करके इसको जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए लिख रहा हूँ कि साइन एक्स का जो वैल्यू है, मतलब बॉक्स ऑफ साइन एक्स का जो वैल्यू है -1 है, राइट। बॉक्स ऑफ साइन एक्स का जो वैल्यू वो -1 है। So in this case, what we first do, इसको सबसे पहले अल्फा कर लेते हैं, पुट। So अल्फा इज इक्वल टू -1। ना नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे? 0 है, -1 है, ये 1, ओके। ना एक चीज देखो, अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपको, मतलब वो वाला जो डोमेन है अल्फा का, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? अगर अल्फा का वैल्यू यहीं पे कहाँ है, लाइक -0.4, तब इसका बॉक्स में अगर पुट करेंगे -0.4, 0.4, बट यू विल गेट -0.4 इज इक्वल, यू विल फाइंड -1, बिकॉज इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन है? -1 है, इसके बाद वाला तो नहीं आएगा। यस, तो 0 वाला पॉइंट को अगर हटा दें हम, तो यही से किसी भी पॉइंट को यही तक -1 तक किसी भी अल्फा को चूज करें, you will find -1. So the domain of alpha here is -1 से इक्वल है, और ये उससे ज्यादा है, और 0 से छोटा है, राइट। यस। अब अल्फा के जगह sin x पुट करेंगे, -1, sin x is less than 0। Now sin x का पर्सनल डोमेन क्या है? -1 से 1 तक चलता है, और इसमें कहा लिखा है -1 से 0 तक। यस, इट सेटिस्फाइज, ये sin x का पर्सनल डोमेन के अंदर ही है ना। हम लोग अब देखेंगे, जैसे प्रीवियस वन में हम जनरलाइज करके sin x का जो वैल्यू था वो 1 था, तो
तो इसीलिए साइन एक्स का बहुत सारा वैल्यू में 1 आता है ना, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 है शायद, यस साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 है। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 है, 3 पाई बाई 2 1 है, फिर चलेंगे तो 5 पाई बाई 2 का वैल्यू फिर से 1 है। तो वैसे बहुत सारे वैल्यू मिल सकते हैं ना, जिसके कारण 1 होगा। अब ठीक वैसे ही साइन एक्स का वैल्यू -1 से 0 के बीच में आएगा, ऐसे भी बहुत सारे वैल्यूज आएगा, तो उन सारी चीज को जनरलाइज करके लिखना है। ओके, सो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ, ओके यस, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे करके बढ़ेगा आगे, राइट? थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, यस। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है, ये साइन एक्स का वैल्यू, ओके। अब देखो ये जो पोर्शन है, ये सारी चीज क्या है, ये लाइक ये 0 है, ये -π/2 है, ये -π है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये π/2 है, ये वाला π है, ये वाला 3π/2 है, ये वाला 2π है, राइट? ऐसे करके करके साइन एक्स का, ऐसे करके करके हम लोग एक्स का जो वैल्यू है, मतलब साइन एक्स में जो एक्स का डोमेन है वैसे करके एक्सपेंड है, राइट? यस, 0 से -π/2 में वैल्यू मैक्सिमम होता है -1, -π में 0 आता है, -π में वैल्यू जो है वो 0 आता है, और 0 में तो 0 है ही, साइन π में भी 0 है, और साइन 3π/2 में फिर -1 आता है। अब देखो हमारा जो रेंज दिया हुआ है, साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 से 0 तक है, राइट? -1 कहाँ है, यहीं पे है, यहीं से 0 तक लाना है हम लोगों को, ओके? यहीं से 0 तक, 0 में लेकिन हॉलो सर्कल है, राइट? 0 में हॉलो सर्कल है, ये हॉलो सर्कल, हाँ 0 में हॉलो सर्कल है, राइट? यहीं पर भी -1 से बड़ा है, लेकिन 0 में हॉलो सर्कल है। यहीं पे क्या है, साइन -π के वैल्यू 0 आता है, साइन -π/2 के वैल्यू -1 आता है, ओके? तो ये वाला जो पोर्शन है कर्व का, ये हमारे रेंज में दिए आते हैं, राइट? बट ये वाला जो पोर्शन है यहीं से यहीं तक, क्या ये वाला पोर्शन हमारे इस रेंज में दिया है? साइन एक्स का इसमें वैल्यू क्या है, साइन एक्स का वैल्यू हमें -1 से 1 के बीच में है, यही से भी -1 से 0 के बीच में आएगा, यही से -1 से 0 के बीच में आएगा, लेकिन यही से करेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से बढ़ रहा है, राइट? 0 से यही तक 1 आएगा, 0 से यही तक 1 आएगा, एंड फिर घट के 0 आएगा, पर वो 0 से तो बड़ा है, यस, दैट्स व्हाई ये वाला पॉइंट जो है हम एक्सक्लूड करेंगे। फिर से देखो इस पॉइंट में आके फिर 0 हो रहा है, राइट? इस पॉइंट में आके फिर 0 हो रहा है, देन फिर 0 से नेगेटिव वैल्यू आएगा, फिर से घटते 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 -1 तक आएगा, वही हमारा रेंज है कि साइन एक्स का जो वैल्यू वो -1 से 0 तक है, यही पे -1 है और यही से 0 से बीच के अंदर है, ये भी सेम -1 से 0 वाला पोर्शन जो ही है। ऐसे करते करते सामने एक और ऐसा वाला नीचे वाला जो बिलो द एक्स एक्सिस जो पोर्शन है साइन एक्स का, वो हमारा एक्सपेक्टेड जो रेंज है उसके अंदर आ रहा है, ओके? तो हमारा जो टोटल एक्स का वैल्यू मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, एक एक्स का वैल्यू जब पाई से लेकर 2π तक है, एक्स का वैल्यू जब पाई से लेकर 2π तक है, वो वाला पोर्शन आएगा, पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ, ओके? तो पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस पाई से लेकर 2π तक ये हमारे इस कर्व के अंदर आ रहा है, राइट? कवर्ड हो रहा है। इन द सेम वे -π से लेकर 0 ये भी कवर्ड हो रहा है, राइट? ऐसे करते करते इसके बाद एक और मिलेगा 2π, इसके बाद आएगा 3π, 3π से 4π भी आएगा, राइट? ऐसे करते करते बहुत सारा ऐसे पोर्शन ऑफ द बिलो द एक्स एक्सिस मिलेगा, जिसको आपको समेशन करना है, एंड देन वो होगा टोटल एक्स, ओके? तो एक्स का फिर क्या आ गया, एक्स मोटे तौर पे क्या हो रहा है, एक्स जो है वो इस पॉइंट के लिए देखे तो एक्स कहां से कहां बिलोंग कर रहा है,
माइनस पाई से जीरो तक। इसके केस में देखें तो x पाई से लेकर 2 पाई तक, राइट। ऐसे करते करते और मिलेगा। इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 1 पाई का। एक और डिफरेंस दे देता हूँ इसके और इसके बीच में। तीसरा वाला जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3 पाई से लेकर 4 पाई, ये वाला मिलेगा, जिसमें पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस विल कवर्ड अंडर दिस ग्राफ। ओके, एक्सपेक्टेड ग्राफ, एक्सपेक्टेड कर्व। तो इसको अगर हम जनरलाइज करके लिखें तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ, ऐसे कितना होगा? जितने भी सारे मिलेंगे उन सारे चीज का यूनियन जोड़ेंगे। इज इक्वल टू 2 in पाई प्लस पाई कॉमा 2 in पाई प्लस 2 पाई एम, हाँ यस, 2 in पाई प्लस पाई and 2 in पाई प्लस 2 पाई where n belongs to integer। ओके, यस, n belongs to integer। अब देखो n का वैल्यू अगर आप 0 पुट करो, सबसे पहले n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो पाई से 2 पाई तक, राइट, यस, पाई से 2 पाई तक। जब 0 पुट करोगे तो ये वाला आपका डोमेन मिल रहा है, राइट। जब 2 पुट करोगे तो ये वाला डोमेन मिलेगा। n का वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो ये वाला डोमेन मिलेगा, जब n का वैल्यू -1 करोगे तो x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ 2 n पाई प्लस पाई comma 2 n पाई प्लस 2 पाई where n belongs to integer। So this is the beauty of mathematics। okay, टोटल हम लोगों ने आज 27 क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट किया। In the next class we will start some of the questions from greatest integer function, and then we will also complete least integer function, and then fractional part function। Okay? I hope you are getting quite interesting in this class। yes, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्लास लेता हूँ, बट हाँ थोड़ा सा ड्रेसिंग में प्रॉब्लम होता है, हमेशा गर्मी लगता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसके अंदर, दैट्स वाई। एंड यस, इट्स रियली नाइस, you know, chapter function, relation and function। I am actually learning and teaching, so that's why it's more interesting। okay ये सब मैंने पहले पढ़ चुका हूँ, पर फिर से पढ़ाने के लिए थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। you people might know this। okay, so पढ़ाना और पढ़ना, it's really a good combination of learning। it's the best way of learning। okay, and which I am doing, so yes, I am grateful। so bye and good night। maybe I will record one class at night। this is 7:10, so yes, at night 12 to 2। okay, good night and sorry, good evening and have a good time।